Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So now this year exam season will start, and many of you are freshers and many of you may be repeaters. Now, if you are a repeater or if you are a fresher, for both set of candidates, this is a very important video and you must watch this video till end to have very great ideas how you can crack the examination this time. So with the interaction of so many candidates, we get some feelers, and these feelers helps the candidate for the next year examination not to repeat those mistakes or to take course correction beforehand. Now, many of you are able to clear the pre-level examination. But the moment you appear in main level examination, the result is not favorable. What can be reason for that and how we can improve our performance in main level examination, that we will discuss in this video. There are a lot of videos on this channel that tells you how you can improve on various topics, various subjects. So you must watch all those videos also. And I am sharing link of those videos time and again. And we will be restarting the series of such videos in coming days also, so that you have fresh ideas and this time you ultimately gets the job. Now, if we look at the composition of main level examination, what is the difference from a pre-level examination to the main level examination, and why candidates those are able to clear pre-level, they sometime are unable to crack at main level examination. Now, in pre-level examination, definitely more number of people get the clearance, and that's why sometime with less effort also we are able to clear it. But as we move to the main level examination, as after that in clerical level examination there is no further step, so competition becomes very tough. In officer level exam also, after mains there is an interview stage and only few candidates qualify for interview stage, competition becomes tough. But besides that, another important aspect that affects the performance of candidate is their weakness in English or Hindi for RRB exams and low score in general awareness, banking, finance and economics. Because in pre-level examination, mainly our knowledge is tilted on account of our performance on reasoning and quant. If someone is very strong in quant and reasoning and moderate in English, he or she is able to get through pre-level examination due to good performance in quant and reasoning. But the candidates those are weak in language, that means English in all competition and English or Hindi in case of RRB, they are struck due to low score in English at main level. So if your hurdle is main level examination, so I will advise have proper focus on language from day one. Don't ignore English and don't ignore Hindi if you are opting for Hindi in RRB examination from day one. So if you are appearing for this year examination, lay more emphasis on English or Hindi, whatever you are focusing as a language from day one. And what should be tools to strengthen our knowledge in English? Similar maybe for the Hindi also.
but we will focus on English because most of you are opting English in all competitions. First thing is you must cover all topic test. Topic test gives you insight in this English language, and very good level of topic test I am suggesting you. Some candidates are confusing between sectional mock test and topic test. Topic test is a different tool, sectional mock test is a different tool. So you must use both the tools, but topic test is essential to have sound knowledge of English language. Link of this is available in description box as well as comments pinned. You can click the link, register, take topic test and apply coupon code AA03 to have 10% off. You can buy this through SmartKida app also. Download the app, select topic test and apply coupon code AA03 to have 10% off. So try to cover 3-4 topics per day and reach level of perfection in these topics of English on daily basis. So if you are able to strengthen 3 topics per day, in 30 days time 90 topics may be strong, or 50 topics may be strong, 40 topics may be strong, because some days you may be able to strengthen 3 topics, some days 2, some day it may be 1 topic only, and some day there may be you have to carry over for the next day. So topic test is one tool. Second important thing for English language is there is a very good course run by SmartKida people, Smart Read. Join this course. Link of this course is same, that is for the mock test. Click the link, register, take this course and apply coupon code AA03 to have 10% off. You can buy this through SmartKida app also. Hundreds of candidates have already joined this course and they are showing remarkable improvement in their English language knowledge. This is second. Third thing you should do is read good English grammar book on daily basis. Reading of good English grammar book will definitely help you to improve your performance in English language. Fourth, start reading Economic Times, Business Standard, Financial Express or Mint on regular basis. This will strengthen your knowledge in English. This will also help you to gain good knowledge in banking, finance and economics. So one thing is have good focus on language, that is English from day one. For other subjects, quant and reasoning, you will continue your focus, but give special time and special attention to English, that will help you. Second important area for mains is having sound knowledge of current affairs. Many candidates, they lose the competition due to their low score in current affair because they start current affair very late. So if you start reading current affair from day one and you cover more and more current affair, you can be ahead of your competitors. So I have suggested you 2 sources. Both the links are available in description box. Click the link, register. Click the link, you will land up on an app, download the app, take 2025 plan, apply coupon code AA03, you will have 10% off. You will have daily, weekly, monthly PDFs, read from there. Second good source is SmartKida Current Affair Mock Drill. Link of that is also available in description box. Click the link, register. You can take 3-month plan, 6-month plan, 12-month plan, 24-month plan and apply coupon code AA03 to have 10% off. You can buy these plans through SmartKida app also. Download the app, select these plans and apply coupon code AA03 to have 10% off. Besides this, you should have sound knowledge of banking. Every year, lot of question comes from banking, and since you are not aware about banking, you lose the score on these questions, and ultimately some other person who has sound knowledge of banking gains.
For this, helping this, I have already given you 4 playlists: banking finance economics, current affair or banking finance economics, banking quiz, and shorts on banking. Watch 10 to 15 videos per day. Make bullet points, notes that will be highly helpful. For banking, finance and economics, there are PDF in both the current affairs source also. So read that also. So comprehensive focus on English, comprehensive focus on current affair and banking from day one can help you to cross the hurdle of mains. If you are reaching the main level and stuck at the main level, follow this technique. This time you will succeed. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। इस साल के कंपटीशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसके लिए अब हम कुछ बातें आपके साथ निरंतर डिस्कस करेंगे जिससे इस साल आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। और ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस की, ये इस बात को ध्यान में रख कर रहे हैं कि जो जो डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं और जो जो फीडबैक हमें कैंडिडेट से मिलते हैं, जो हज़ारों कैंडिडेट हर साल बैठते हैं, जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, जो जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसके आधार पर हम हर साल कुछ फ्रेश सजेशंस आपको देते हैं और कुछ एग्जिस्टिंग सजेशंस को फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो इस विषयों पर कैसे क्वांट को इम्प्रूव करें, कैसे रीजनिंग को इम्प्रूव करें, कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करें, कैसे करंट अफेयर पढ़ें, बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। मगर एक समस्या रिपीटर्स की है और ये वीडियो रिपीटर्स के लिए भी है, फ्रेशर्स के लिए भी है। क्योंकि रिपीटर्स ने जो गलतियां की हैं, अगर फ्रेशर नहीं करेंगे तो वो पहली बार में ही इस हर्डल को पार करेंगे। और रिपीटर्स अगर पिछले सालों में स्ट्रक हो गए हैं तो इस साल क्या करें कि वो गलती दोबारा ना हो या वो कमी दोबारा ना रह जाए और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में कामयाब हो। देखो, प्री लेवल एग्जामिनेशन बहुत सारे कैंडिडेट पास कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? उसके 2 कारण हैं। पहला तो अधिक संख्या में लोग पास होते हैं, तो अधिक संख्या में आ जाएंगे तो कई बार हम बहुत ऊपर तो नहीं होते, मीडियोकर हमारी परफॉर्मेंस होती है, प्री हमारा पास हो जाता है। पर जब मेन लेवल में बैठते हैं तो वहाँ क्योंकि कम कैंडिडेट ने पास होना होता है तो कई बार हम उन कैंडिडेट की संख्या में नहीं आ पाते। एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो प्री लेवल का एग्जामिनेशन है उसमें जिन कैंडिडेट्स की रीजनिंग और क्वांट स्ट्रांग होती है वो उन 2 सब्जेक्ट्स के स्ट्रांग होने की वजह से प्री लेवल में एग्रीगेट स्कोर इम्प्रूव करके निकल जाते हैं। मगर जो उनकी वीकनेस इंग्लिश के अंदर होती है या इंग्लिश और हिंदी अगर आरआरबी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मेन लेवल पे जाकर अटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से जो लेवल है वो मैच ना कर पाना कैंडिडेट्स के साथ उनको तंग करता है। क्योंकि जिन लोगों की इंग्लिश या हिंदी की लैंग्वेज अगर आरआरबी एग्ज़ाम दे रहे हैं जो वीक होते हैं, ये अमूमन देखने में आया है कि मेन लेवल एग्जामिनेशन में ऐसे कैंडिडेट्स को काफ़ी दिक्कत आती है क्रैक करने में। और दूसरा कारण उनका बनता है करंट अफेयर के अंदर लो स्कोर करना। जिन लोगों की क्वांट और रीजनिंग स्ट्रांग होती है वो प्री और मेन दोनों में ही क्वांट और रीजनिंग अच्छे नंबर ले जाते हैं, मगर इंग्लिश उनके लिए एक चैलेंज साबित होती है। अब क्योंकि इंग्लिश को उन्होंने हल्के में लिया होता है और हल्का इंग्लिश होने पे भी प्री तो पास हो ही जाता है, तो उनको ये लगता है कि हम मेन भी इसी लेवल पे पार कर लेंगे, पर सच्चाई अदरवाइज है। और इसीलिए यदि आप साल के शुरू से लैंग्वेज पे काम करते हैं, इंग्लिश पे काम करते हैं, या अगर आप हिंदी ले रहे हैं आरआरबी में और खाली आरआरबी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हिंदी पे काम करते हैं, तो आप आगे निकल सकते हैं। तो इसमें हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, और वही बातें हिंदी लैंग्वेज पर भी लागू हैं। तो जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें चाहिए वही हिंदी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए, तो वो आपने लागू करनी है। पहला काम आप क्या करेंगे, अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो जितने टॉपिक टेस्ट हैं इंग्लिश के, और हिंदी स्ट्रॉन्ग करनी है तो जो हिंदी के टॉपिक टेस्ट हैं वो सारे आपने कर डालने हैं। टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट अलग अलग चीज़ होती है, काफ़ी कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
टॉपिक टेस्ट भी करने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी करने हैं, मगर टॉपिक टेस्ट आपको लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। रोज कुछ टॉपिक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं और जब तक वो परफेक्ट नहीं होते अगले टॉपिक पे नहीं जाना है आपने। टॉपिक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, टॉपिक टेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, टॉपिक टेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। टॉपिक टेस्ट के लिए कोई आपने टाइम नहीं फिक्स करना है कि इतने मिनट में ही ख़त्म कर डालना, नहीं। टॉपिक टेस्ट में आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, चाहे मुझे सेम टॉपिक टेस्ट को एक बार करना पड़े, 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े, जब तक मैं वो टॉपिक टेस्ट करता रहूँगा जब तक मेरा उस टॉपिक में महारत नहीं हो जाएगी। और मान लीजिए आप एक दिन में 3 टॉपिक में महारत हासिल कर लेते हैं तो 30 दिन में 90 टॉपिक आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। 90 टॉपिक का मतलब है कितने नंबर बढ़ गए, पर 90 तो नहीं कर पाएंगे एक महीने में। हो सकता है आपके 50 टॉपिक स्ट्रांग हो सकता है 30 टॉपिक स्ट्रांग हो सकता है 40 टॉपिक स्ट्रांग हो सकता है 90 स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि टॉपिक तो लिमिटेड ही है ना। तो जो हम एक तो रॉ एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी है चाहे 3 टॉपिक एक दिन में स्ट्रांग हो जाएं, चाहे 2 स्ट्रांग हो जाएं, चाहे 1 स्ट्रांग हो जाए, और इस मेथड को हमें यूज़ करते जाना है जब तक हमारे सारे टॉपिक स्ट्रांग नहीं हो जाते उस सब्जेक्ट के। समझ आ गई बात आपको? तो टॉपिक टेस्ट निरंतर यूज़ करना है शुरू के दिनों में, और इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस रखना है इन दिनों के अंदर। पहला काम टॉपिक टेस्ट ख़त्म करना। दूसरा काम क्या है कि स्मार्ट कीड़ा की तरफ से एक बहुत अच्छा कोर्स इंग्लिश में चल रहा है, स्मार्ट रीड के नाम से। सैकड़ों बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करिए। इसका भी सेम लिंक है जो टॉपिक टेस्ट वाला लिंक है, उसी लिंक से आपको स्मार्ट रीड कोर्स भी मिल जाएगा और कूपन कोड लगाना है AA03, 10% ऑफ आ जाएगा और स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं। अब जब आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो जो वहाँ पर आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं, जो वहाँ पर डिस्कशन अटेंड करते हैं, और उनका एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी है जिसके अंदर आपकी क्वेरीज का आंसर भी वो करते हैं, तो आप देखेंगे निरंतर आपकी इंग्लिश की पकड़ बढ़ती चली जाएगी और इंग्लिश आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज़ आप क्या करेंगे, रोज़ एक इंग्लिश की ग्रामर बुक 1 घंटा रोज़ पढ़ेंगे। उससे जो इंग्लिश के विषय में आपकी जानकारी है वो बढ़ती जाएगी। अगर आप हिंदी पे फोकस कर रहे हैं तो हिंदी की व्याकरण बुक पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने आदत डालनी है इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस या मिंट रोज पढ़ने की। उससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, उससे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। तो बहुत अधिक फोकस आपको लैंग्वेज पे देना है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, क्योंकि ये बहुत लोगों की कमजोरी है और वो इस कमजोरी के साथ ही एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। वो सोचते हैं चलो हम कहीं और से कवर कर लेंगे। इग्नोर नहीं करना है इंग्लिश और हिंदी को। इसी तरह से करंट अफेयर कई बच्चे क्या आखिरी दिनों में शुरू करते हैं और फिर पिछड़ जाते हैं। करंट अफेयर आपकी रोज की आदत होनी चाहिए, चाहे एग्ज़ाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, करंट अफेयर पढ़नी ही है। इसके 2 सोर्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप को डाउनलोड करके 2025 का प्लान ले लीजिए, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। अफेयर क्लाउड का सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है। डेली, वीकली, मंथली PDF आपके पास आ जाएंगी। डेली PDF पढ़नी शुरू करिए। दूसरा अच्छा सोर्स है स्मार्ट कीड़ा करंट अफेयर मॉक ड्रिल, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे। 3 महीने का प्लान ले लीजिए, 6 महीने का ले लीजिए, 12 महीने, 24 महीने, जो प्लान आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, इसको जो प्लान चाहिए सिलेक्ट कर लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। तो एक तो आपने आदत डालनी है रोज PDF पढ़नी है करंट अफेयर की। इन्हीं दोनों सोर्स में बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स की भी PDFs हैं, वो भी आपने पढ़नी है।
इसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास 4 प्लेलिस्ट हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस लिंक को क्लिक करेंगे और 10-15 वीडियो रोज की देखेंगे। इसके बुलेट पॉइंट भी नोट कर लेंगे। बैंकिंग में बहुत क्वेश्चन आते हैं हर साल, और काफ़ी बच्चे वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बैंकिंग की नॉलेज होती ही नहीं है, और फिर बाद में पछताते हैं। क्योंकि जिसकी नॉलेज होती है बैंकिंग की, वो नंबर स्कोर कर जाता है उस क्वेश्चन में, और जिसकी नहीं होती है वो पिछड़ जाता है, जबकि बाकी बहुत मेहनत की होती है, और फिर बाद में लगता है मेरा मेन तो रह गया, क्योंकि बैंकिंग की मेरे को नॉलेज ही नहीं होती। तो जो बैंकिंग के नंबर हैं 2, 4, 5 जो भी हैं, वो मेरे हाथ से स्लिप हो जाते हैं, और वही मेरे लिए घातक साबित होते हैं। तो इंग्लिश पे फोकस कर लीजिए, करंट अफेयर पे फोकस कर लीजिए, और बैंकिंग नॉलेज एक्वायर करें डे 1 से। अगर ये आप करते हैं तो मेन एग्ज़ाम पार करना, वो हर्डल पार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और चीज़ों के विषय में वीडियोज़ हम डालते रहेंगे, ध्यान से उन वीडियोज़ को देखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।